Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan हरे कृष्णा। सबसे पहले जितने भी भक्त हैं उनको भी बहुत बहुत जो कहते हैं धन्यवाद कि उन्होंने अवसर दिया मुझे इस एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम की कुछ सेवा कर सके। तो आज का जो शीर्षक है वो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 13वां अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14 है। तो इस अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र क्विट्स होम। तो शुरू करने से पहले हम जो है आश्रय ले लेते हैं गुरु का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। श्लोक संख्या पहले स्कंद का 13 अध्याय और 13वां श्लोक। तो नान्व अप्रियम दुर्विशाहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत् सकरुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Compassionate Mahatma Vidur could not stand to see the Pandavas distressed at any time. Therefore, he did not disclose the unpalatable and unbearable incident because calamities come on their own accord. According to Niti Shastra, civic laws, one should not speak an unpalatable truth to cause distress to others. Distress comes upon us in its own way by the laws of nature. So, one should not aggravate it by propaganda. For a compassionate soul like Vidura, especially in his dealings with the beloved Pandavas, it was almost impossible to disclose an unpalatable piece of news like the annihilation of the Yadu dynasty. Therefore, he purposely refrained from it. श्लोक संख्या 14। कांचित कालम अथावत सत्कृतो देववत सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहम। Thus, Mahatma Vidura, being treated just like a godly person by his kinsman, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother and in this way bring happiness to all the others. Purport. Saintly persons like Saintly persons like Vidura must be treated as well as denizens from heaven. In those days, denizens of heavenly planets used to visit homes like that of Maharaj Yudhishthira, and sometimes persons like Arjuna and others used to visit higher planets. Narada is a spaceman who can travel unrestrictedly not only within the material universe but also in the spiritual universe. Even Narada used to visit the place of Maharaj Yudhishthira, and what to speak of other celestial demigods. It is only the spiritual culture of the people concerned that makes interplanetary travel possible even in the present body. Maharaj Yudhishthira therefore received Vidura in the manner of reception offered to the demigods. Mahatma Vidura has
had already opted the renounced order of life, and therefore he did not return to his parental palace to enjoy some material comforts. He accepted out of his own mercy what was offered to him by Maharaj Yudhishthira. But the purpose of living in the palace was to deliver his elder brother. Dhritarashtra, who was too much materially attached, Dhritarashtra lost all his state and descendants in the fight with Maharaj Yudhishthira, and still, due to his sense of helplessness, he did not feel ashamed to accept the charity and hospitality of Maharaj Yudhishthira. On the part of Maharaj Yudhishthira, it was quite in order to maintain his uncle in a befitting manner, but acceptance of such magnanimous hospitality by Dhritarashtra was not at all desirable. He accepted it because he thought that there was no alternative. Vidura particularly came to enlighten Dhritarashtra and to give him a lift to the higher status of spiritual cognition. It is the duty of enlightened souls to deliver the fallen ones, and Vidura came for that reason. But talks of spiritual enlightenment are so refreshing that while instructing Dhritarashtra, Vidura attracted the attention of all the members of the family, and all of them took pleasure in hearing him patiently. This is the way of spiritual realization. The message should be heard attentively, and if spoken by a realized soul, it will act on the dormant heart of conditioned soul, and by continuously hearing, one can attain the perfect stage of self-realization. Om Agyan Thimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmritam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadam. Namom Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Nami. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshtarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. तो आज इस पावन अवसर पर पहले तो हम जो यहाँ पर शुद्ध भक्त हैं विदुर जी, महात्मा विदुर, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसके संदर्भ के अंदर श्लोक संख्या इसी अध्याय के 13वें श्लोक के 13वें इसी अध्याय के इसी स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर बहुत सारी जो बातें बताई गई विदुर जी के बारे में और शुद्ध भक्तों के बारे में, और शुद्ध भक्त कैसे, मतलब उनका प्रभाव क्या पड़ता है, उन जो विषयों को पर आपने पहले सुना होगा, मगर ये बार बार सुनने लायक है। इसके लिए इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं और फिर आगे की जो दोनों श्लोकों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो श्लोक संख्या है 10, इसके अंदर बताया गया है द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान हर जगह पर उपस्थित हैं, भगवान हर जगह पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे होती है, जहां पर भी एक बल्ब वहां पर कनेक्ट किया जाए तो वहां पर रोशनी दिखाई देती है, मगर इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह पर है। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं परपट के अंदर। तो उसी तरह जो भक्त हैं, वो भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान हर जगह पे उपस्थित हैं। तो ये जो भक्त हैं वो भक्त बल्ब का काम करते हैं। भक्त जो है भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भक्त भगवान की उपस्थिति का जो है सबको अनुभव कराते हैं। जिस तरह एक बल्ब है दूसरों को रोशनी देकर बताता है कि यहाँ पर रोशनी है, उसी तरह भगवान की उपस्थिति जो है हमको शुद्ध भक्तों के माध्यम से पता चलती है। उसके बाद में दूसरा उन्होंने बताया कि प्योर डिवोटी लाइक विदुर ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। जो शुद्ध भक्त होता है, जो यहाँ पर विदुर जी की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर बताते हैं कि वो भगवान की उपस्थिति सबको अनुभव कराते हैं। तो इसके अंदर इस संदर्भ पे हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज, जब उनको पूछा गया कि भगवान कहाँ पर है, विष्णु कहाँ है तुम्हारा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पे मेरे विष्णु जी, मेरे ठाकुर जी जो मेरे भगवान है वो उपस्थित हैं। और उनका उद्देश्य क्या था? अब इतनी छोटी सी उम्र के अंदर प्रहलाद महाराज, वो तो बालक थे उस समय पे, वो क्या कर रहे थे? वही कार्य कर रहे थे जो शुद्ध भक्त करता है। यारे देखा तारे कहा, कृष्ण उपदेश। तो वहां पर दूसरों के प्रति कंपैशन, दूसरों के प्रति दयालु भाव होकर वो उनको बता रहे थे कि भगवान वहां पर भी प्रचार कर रहे थे। प्रहलाद महाराज भी प्रचार कर रहे थे और यहाँ पर भी विदुर जी भी है। ये भी आकर यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, किस तरह वो प्रचार करते हैं।
The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness. जितनी भी यहाँ पर तीर्थ स्थान है, वो जितने भी लोग जो दूषित हैं, उनको उनको शुद्ध करने के हेतु जो चीज वो जो तीर्थ स्थान है। तो ये तीर्थ स्थान मतलब यहाँ पर बताते हैं कि तीर्थ स्थान को जो है शुद्ध कौन बनाता है, तो ये शुद्ध भक्तों की उपस्थिति जो है इन तीर्थ स्थानों को प्योर बनाता है, प्योर शुद्ध बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर इसी जो तात्पर्य के अंदर बताया गया है कि आप अगर कहीं पर धाम में जाते हो तो धाम में सिर्फ वहां पर पिकनिक के लिए नहीं जाना है, वहां पर जाके वहां पे एक शुद्ध भक्तों को का संग लेना है। तो आपको वहां पर जाके शुद्ध भक्तों को ढूंढना है और उन शुद्ध भक्तों के द्वारा उस स्थान की, उस तीर्थ की जो है महिमा को सुनना है। तो इस वो तीर्थ स्थान क्यों तीर्थ स्थान है, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण वो शुद्ध स्थान है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे इसी तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि अगर जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने ज्ञान एकत्रित किया है तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो श्रवण करते हैं और उसके बाद में कीर्तन करते हैं। और वहां पर उसी तात्पर्य के अंदर बताया गया है कि महामुनि व्यास देव जी ने क्या किया, नारद के द्वारा उन्होंने सुना और उसके बाद में उन्होंने इतने सारे जो ग्रंथ लिख दिए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता के माध्यम से सुना और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत जो है परीक्षित महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को हमें पहुंचाया। तो इसी तरह मतलब शुद्ध भक्त के जो क्वालिटीज हैं वो क्या होते हैं, वो जहां पर भी जाते हैं वहां उस एरिया को धाम बना देते हैं और वो जो ज्ञान एकत्रित करते हैं वो एकत्रित ज्ञान किया वो अपने पास नहीं रखते और वो दूसरों को बांटते हैं। तो अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 13 के अंदर जो श्लोक संख्या के अंदर बताया गया है, एक बार ट्रांसलेशन फिर पढ़ लेते हैं। Compassionate Mahatma Vidura could not stand to see the Pandavas' distress at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. तो यहाँ पर इस जो श्लोक के अंदर से हमको क्या बातें समझ में आती है और आज के जीवन में हम क्या करते हैं, हम टोटली इसके अगेंस्ट में, इसके विपरीत करते हैं। तो यहाँ पर आजकल का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आजकल का चल रहा है वो क्या है कि जैसे ही कोई बुरे समाचार, बुरी स्थिति का किसी को भी ज्ञात हुआ तो स्पेशली जो मीडियाज होती है वो क्या करते हैं, तुरंत उस चीज को पूरे दिन दिखाएंगे। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर क्या हो गया तो उसके बारे में पूरा दिन उस चैनल के ऊपर वही सेम चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे। कहां पर पथराव हो गया तो उसके बारे में बार बार जो बुरे न्यूज हैं, जो खराब न्यूज हैं उसको बार बार लोगों को बताते जाएंगे और पूरा दिन, और लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि उसी न्यूज को बार बार सुनते रहेंगे और सामने बैठ के देखते रहेंगे। और बाद में क्या हो जाता है, उनके अंदर एक तो जो है वो विचलित हो जाते हैं और उनको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। तो ये मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न सोच ऐसी है। और मीडिया ये क्यों करती है ऐसी, क्योंकि मीडिया को उनको चाहिए पैसे। तो वो पैसे कैसे बनाती है, वो दूसरों के दुख के बारे में जो है, दूसरों की तकलीफों को जो है बताती है और उसके ऊपर वो अपनी जो उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये मीडिया का काम है। मतलब जनरली बात करते हैं, इसमें सब मीडिया ऐसी नहीं है, मगर अमूमन जितनी भी मीडियाज हैं वो ऐसा ही इनका कार्य है। वैदिक पद्धति क्या है, तो वैदिक पद्धति के अंदर यह है कि जो बुरे समाचार हैं वो बताने, जैसे कि कोई कहीं पर बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये उसको कैसे मानना है, इट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। भगवान की इच्छा है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में क्या करना है, और इसको मुझे किसी को प्रोपोगेट नहीं करना है, मुझे इसका जो प्रचार नहीं करना है। प्रचार किस चीज का करना है, तो भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के बारे में बात करना, भगवान उनके बारे में प्रचार करना है। बाकी इन चीजों का जो भगवान ने हमारे ऊपर कोई भी अगर कोई जो ऐसे हमारे ऊपर कोई प्रहार किया है किसी चीज का, तो उस चीज का प्रोपोगेट नहीं करना, उस चीज को हमको जो है
बात नहीं करनी है, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। बोले ठीक है, ये तो भगवान की विल है, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा के साथ, और भगवान की इच्छा है और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट करने के बाद में हमको उसको प्रोपोगेट नहीं करना है। तो ये पॉइंट इस श्लोक के माध्यम से आती है। और इसी ये किसके अंदर बताया गया? तो ये बताया नीति शास्त्र के अंदर। नीति शास्त्र के अंदर ये सेम चीज बताएगी, जो चीज मतलब किसी को दुख पहुंचाने वाली हो, वो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उसको ज्ञात हो जाएगी। समय जैसे जाएगा उसको किसी न किसी प्रकार से उसको ज्ञान, उस चीज का जो बुरे समाचार हैं वो उसको समाचार मिल जाएंगे। तो ये था श्लोक संख्या 13 का जो बातें थी। जो श्लोक संख्या है 14, Thus Mahatma Vidur, being treated just like a godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother and in this way bring happiness to all the others. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विदुर जी को उन्होंने किस तरह से एक गुरु की तरह, एक भगवान की तरह मतलब उनको उनका आदर दिया और उनको रिस्पेक्ट दिया। तो ये ऐसा क्यों है? तो हम जैसे सुनते हैं हमारे गुरुवाष्टकम के अंदर, साक्षात दरिद्र समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव एव सद्भि किंतु प्रभो ये प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो हमारे गुरु हैं, उसको कैसे हम लोग जो है सम्मान देते हैं, तो जिस प्रकार हम भगवान को देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने हृदय में हमेशा भगवान को लेकर हर जगह पे वो उनके साथ में वो अपना प्रेम का जो व्यवहार है वो आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो हमेशा हमारे मतलब जो हमेशा भगवान को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, उनको आदर देना, क्योंकि हम भगवान को आदर देते हैं, हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। तो इसी तरह इन शुद्ध भक्तों को भी उसी तरह, जिस तरह भगवान को हम जो है आदर देते हैं, भगवान का हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह इन शुद्ध भक्तों का उनको आदर करना चाहिए, जो एलिवेटेड वैष्णव्स हैं। तो अभी यहाँ पर इस संदर्भ के अंदर आता है कि हस्तिनापुर के अंदर मतलब जो है महात्मा विदुर वो तो सब छोड़ चुके थे, मतलब संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो वो वहां पर हस्तिनापुर में आके उसमें जो है पैलेस के अंदर आके क्यों रहते हैं? तो प्रश्न ये उठता है। तो पहले तो हस्तिनापुर में आए क्यों और पैलेस में आके रहे क्यों? तो उनको पता था कि उनके जो बड़े भ्राता हैं, जो उनके एल्डर ब्रदर हैं, जिनका नाम था धृतराष्ट्र, वो इतने मतलब भौतिकवादी हैं, इतने मेटेरियलिस्टिक हैं कि वो इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। और ये हम देखते हैं कि भाई जब विदुर जी आए तो उन्होंने देखा कि भाई सब कुछ हारने के बाद, 100 के 100 पुत्र मर जाने के बाद भी जो उनके पास, और इतना उनको ये धृतराष्ट्र ने इतना सारा जो है बुरे कर्म किए पांडवों के ऊपर, उसके बावजूद भी वो पांडवों के आश्रय में रह रहे थे। तो ये जो बात है, ये बात ज्ञात करवानी थी जो विदुर जी के माध्यम से जो धृतराष्ट्र को, जिससे उसको ज्ञान मिले कि भाई मुझे अभी ये सब छोड़ना है, जो मेरी भौतिक दृष्टि है उसको छोड़ के मुझे आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलना है। तो ये मेन पर्पस था इनका, और वो यहाँ पर आए थे अपने ब्रदर को यहाँ से इस भौतिक जो बंधन से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत आसक्त थे इस भौतिक चीजों से। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वर्ड इज श्रेयकृत। श्रेयस्कृत इस श्लोक के अंदर शब्द आता है श्रेयस्कृत। श्रेयस्कृत का मतलब क्या है कि सबसे ऊंचा जो मतलब श्रेय हो, सबसे ऊंचा जो बेनिफिट है वो धृतराष्ट्र को वो देना चाहते थे। वो सबसे ऊंचा जो बेनिफिट क्या है, तो किसी को भी भगवान के मार्ग पर लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना, वो सबसे ऊंचा मार्ग है। तो हमको भी यही करना चाहिए, हमको भी ये सीख लेनी चाहिए कि विदुर जी के समान, कि जो भटके हुए हैं, जितने भी इस संसार के अंदर लोग भटके हुए हैं, जो भगवान के भक्ति में नहीं जुड़े हैं, उनको हमको जोड़ना है। क्योंकि ये यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया है कि ये सबसे बड़ा कार्य है, ये श्रेयस्कृत है, यानी दिस इज द हाईएस्ट बेनिफिट विच वन कैन गिव टू एनीबॉडी। और उसके बाद में यहाँ पर जो विदुर जी की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो इस अभी तक के जितने श्लोक्स हैं उसके अंदर से, उसके माध्यम से हमको पता चलती है। और ये जो शुद्ध भक्त के अंदर क्वालिटीज होती है, इसके बारे में
चैतन्य चरितमृत के अंदर बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिटीज होती है 26। तो मैं इन 26 क्वालिटीज का जो है इसका वर्णन मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें से पहली क्वालिटी, ही इज वेरी काइंड, बहुत दयालु होते हैं और सबके प्रति वो दयालु होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। उसके बाद में ही डज नॉट मेक एनीवन हिज एनिमी, किसी को भी वो शत्रु नहीं मानते, किसी से भी वो शत्रुता नहीं करते। उसके बाद में हमेशा सत्य बात करते हैं, हमेशा ट्रूथफुल रहते हैं, इक्वल टू एवरीवन, वो समान भाव रखते हैं सबके प्रति। उनके अंदर कोई ऐब या कोई भी उनके अंदर गलती या कोई भी उनके अंदर त्रुटि नहीं देख सकता, और वो बहुत उद्धार होते हैं। ये इसकी छठी क्वालिटी है। सातवीं क्वालिटी है, वो सौम्य होते हैं। उसके बाद में आती है कि वो हमेशा क्लीन रहते हैं। उसके बाद में नौवीं क्वालिटी आती है, उनके पास कोई भी उनके भौतिक जो चीजें हैं उसकी उनकी आसक्ति नहीं होती, उनको आसक्ति नहीं होती, और उनके पास ऐसी कोई चीजें नहीं होती जो भौतिक चीजों के साथ में वो जुड़े हुए हों। और दूसरे बात में वो हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, हमेशा पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं। उसके बाद में हमेशा भगवान के प्रति नतमस्तक रहते हैं, हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं। 13वीं क्वालिटी आती है, उनको भौतिक इच्छाएं कोई भी नहीं रहती। उसके बाद में वो एक विनम्र रहते हैं, हमेशा जो विनम्र रहते हैं। ये 14वीं क्वालिटी है। 15वीं क्वालिटी है, वो स्थिर रहते हैं, जिसको बोलते हैं ही स्टडी। उसके बाद में इनकी इंद्रियों को कंट्रोल में रहती है, उनकी इंद्रियां। उसके बाद में ही डज नॉट ईट मोर देन रिक्वायर्ड, ज्यादा जितना शरीर के चलाने के लिए उपयुक्त है इतना ही वो प्रसादम ग्रहण करते हैं। 18वीं क्वालिटी है, वो किसी भी जो माया से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे माया का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में 19वीं क्वालिटी है, वो जो है हमेशा दूसरों को आदर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे विदुर जी आते हैं, वो सबको आदर देते हैं, अपने बड़े भ्राता को आदर देते हैं। उसके बाद में जो भी वहां पर जो उनसे वरिष्ठ थे उनको वो आदर प्रदान करते हैं। और ही डज नॉट डिजायर एनी रिस्पेक्ट, और उसी समय पर वो किसी से भी जो है अपना रिस्पेक्ट के लिए वो आतुर नहीं होते। वो बहुत गंभीर होते हैं, हमेशा दयालु रहते हैं। उसके बाद में जो उनका मित्र भाव हमेशा रहता है, और बहुत कवि होते हैं, यानी बहुत अच्छे मतलब भगवान के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में हमेशा गुणगान करते रहते हैं। और 25वीं क्वालिटी है, वो दक्ष होते हैं, हर चीजों के अंदर एक्सपर्ट रहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो किस सिचुएशन के अंदर उनको तुरंत याद आ गया कि मुझे नीति शास्त्र के अनुसार, जैसे एक बात आती है तो नीति शास्त्र, जैसे प्रभुपाद पर्पट के अंदर बताते हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार कोई भी जो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में जिससे किसी को दुख हो तो वो नहीं बताना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्य को छुपाना है, ऐसा नहीं है। वो इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे अपने आप, जब भगवान चाहेंगे तो अपने आप ही वो बात उनको, जिसके साथ में ये हुआ है उसको बात का जो ज्ञान हो ही जाएगा। और लास्ट की जो क्वालिटी है, ही साइलेंट, हमेशा शांत स्वभाव के रहते हैं। तो अभी कंपैशन हमने किस तरह से देखा, तो ये कंपैशन टुवर्ड्स पांडवास, और क्योंकि उन्होंने यदु डायनेस्टी का जो पूरा संहार हो चुका था, तो ये बात उन्होंने पांडवों को नहीं बताई, जिससे हमको कंपैशन पता चलता है। ही इज काइंड टू एवरीवन, टू पांडवास एज वेल एज धृतराष्ट्र, दोनों के प्रति वो जो है एकदम दयालु होते हैं। उनके अंदर कोई भी जो त्रुटि नहीं देख सकते। तो ये भी हमने देखा। तो हमेशा दूसरों को आदर देते हैं, भौतिक चीजों की इच्छा नहीं है। तो ये चीजें हमने देखी। उसके बाद में ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलते हैं। तो सत्य बोलने का जो है मतलब श्रीला जीव गोस्वामी अपने मतलब बताते हैं कि 3 प्रकार के जो सत्य मतलब बातें होती है, जो लोग बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं, तो उनका जो मनोभाव, मनोस्थिति क्या होती है। तो ये 3 प्रकार के अंदर उन्होंने इसका उल्लेख किया श्रीला जीव गोस्वामी। एक तो उन्होंने बताया कि 3 प्रकार से सत्य कैसे बोला जाता है। एक तो होता है उसका पीछे मनोभाव क्या, उसकी स्थिति क्या है जिस बोलने वाले की। तो उन्होंने बोला एक तो होता है जो वाद है, दूसरा है जल्प है, और तीसरा है वितंदा। वितंद और वाद का मतलब क्या है, तो बोला वो डिस्कशन, जो भी जहां पर भी सत्य की बात चर्चा होती हो, वहां पर वो आदमी जो है, जो सत्य ये बोल रहा है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी किसी भी चीज के ऊपर निर्णय लेना है और किसी भी चीज के उनको शंका का समाधान करना है, तो उसके अंदर खाली जो महत्व बात कौन सी है, वो महत्वपूर्ण बात है सत्य।
ट्रुथ को वो देखते हैं और उस हिसाब से वो चर्चा करते हैं। तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि हमको इसमें से सत्य को बाहर निकालना है और सत्य क्या है वो देखना है। तो उनका जो उनकी मनोस्थिति क्या होती है, तो वो जो है जिसको बोलते हैं कि 3 गुण होते हैं, सतो, रजो और तमोगुण। तो ये जो है सतो गुण के अंदर उनकी मनोस्थिति है कि वो इसमें से जो शंका है उसमें से सत्य को निकालने का प्रयास करते हैं। तो इनकी मनोस्थिति कैसी है? इनकी मनोस्थिति ऐसी है कि वो सतोगुण के अंदर है। जल्प के अंदर क्या होता है कि जो ये चर्चा करता है उसका इंटेंशन क्या रहता है कि मतलब वो दूसरे क्या बोल रहे हैं, जो संगठन के अंदर है वो क्या बोल रहे हैं, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपनी बात दूसरों को सुनानी है, ये उसकी मनोस्थिति रहती है। तो इसको बोलते हैं कि भाई ये जो है रजोगुण के अंदर है। तो ये दिस इज वो के जो ऐसे जिसकी मतलब कंडीशन ऐसी रहती है कि वो हमेशा दूसरों को अपनी बात सुनाने के लिए वो वहां पर बैठा है, और वो दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके अंदर उसको कुछ भी जो है इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को सुनने के लिए। तो ऐसे स्थिति में जो बात करने वाले लोग जो होते हैं वो कौन से मोड के अंदर है? तो दे आर इन द मोड ऑफ पैशन, तो वो रजोगुण के अंदर है। और तीसरा जो है वितंदा बताया है कि जो लोग मतलब हमेशा ये कहते हैं कि भाई मुझे जो ये आर्ग्यूमेंट हो रही है वो कुछ भी हो जाए, मुझे इसमें से जीतना है, कुछ भी हो जाए, मतलब वो ऐसे मतलब बात करेंगे। और ये जो मतलब सत्य मतलब बात है वो सत्य होती ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति जो ऐसे प्रकार की उसकी मनोस्थिति है वो ये है कि भाई उसको इस जो डिस्कशन हो रहा है या जो चर्चा हो रही है उसमें उसको जीतना है, दूसरे लोगों के ऊपर हावी होना है। तो ऐसे जो उसकी मनोस्थिति को बताया गया है कि ऐसी मनोस्थिति किसकी होती है, तो उसकी होती है जो तमोगुण के अंदर है। तो ये शिला जीव गोस्वामी बताते हैं श्री सत संदर्भ के अंदर। तो ये जो बातें हैं इसके श्लोक के माध्यम से हमको पता चलती है। और अंत के अंदर जैसे आते हैं तो ये जो श्लोक संख्या लास्ट है, जो 14वां श्लोक था, उसके अंदर क्या बताया गया है? दिस इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। हमको जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है और the message should be heard attentively। हमको जो ऐसे शुद्ध भक्त का जो संग मिलता है तो उनसे सही माने में हमको ज्ञान बटोरना है। और बटोरने के बाद में हमको जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 3 स्टेजेस हैं हमारे अंदर, हमको जीवन के अंदर शिला प्रभुपाद ने बताई है। उन 3 चीजों को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला लेसन क्या है? सिंप्लिसिटी। हम जितनी भी हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सरल होना चाहिए। तो और हमारे जो विचार हैं उच्च होने चाहिए, मगर हमने क्या करे, हमारा रहन सहन उच्च कर दिया है और जो हमारे विचार हैं वो सरल कर दिए। तो वी हैव टोटली डिविएटेड, हम लोग मार्ग से भटक चुके हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि जितनी सिंप्लिसिटी हो। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि आदमी अंदर अपने आप को झांके और देखे कि मैं किस तरह आगे बढ़ सकता हूँ और मेरे दिनचर्या के अंदर मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मुझे इस जीवन के अंदर काम आएगा। क्योंकि हम भौतिक चीजें तो यहाँ पर रह जाएंगी, हमको आगे बढ़ना है। तो हमको सिंप्लिसिटी के साथ में बढ़ना है। और सिंप्लिसिटी किसमें है? कि सिंपल रहना है, अपने आप को पहले अपना आत्मनिरीक्षण करना है। तो ये दैट इज सिंप्लिसिटी। एंड सेकंड थिंग इज, उसके बाद में हमने देखा था स्मॉल एडवांसमेंट। हम प्रतिदिन ये देखें कि कल के कंपैरिजन में, कल के जैसे कल मैंने जो किया था उससे आज मैंने कितना अच्छा जप किया, कल जो मैंने कोई भी सेवा की थी तो आज मैंने उससे अच्छी सेवा की है कि नहीं। और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमको आगे बढ़ना है और अंत के अंदर हमको एम्ब्रेस करना है। तो जैसे सिंप्लिसिटी, उसके बाद में बोलते हैं स्मॉल जो एडवांसमेंट, और लास्ट में आता है वो है एम्ब्रेस करना है। जिस तरह भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में हमको रहना है। और हमको हमारी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में जो भी ऐसे स्टेप्स मिलते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त मिलते हैं, ऐसे जो मतलब हमको जो भी चांस मिलती है, जो भी क्लासेस का समय मिलता है, वो सब क्लासेस अटेंड करें और ताकि हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और ज्ञान के साथ साथ में हम अपने अंदर भी बदलाव लाएं, विनम्रता लाएं, ताकि हम उन ज्ञान को लेकर जैसे विदुर जी दूसरों को
दूसरों का उद्धार करने के लिए, यानी सही माने में देखो तो वो धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए आए थे। तो ऐसे हम हमारी मनोस्थिति हो, और ये तभी संभव है जब हम डेली प्रैक्टिस करें, थोड़े छोटे-छोटे स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी अगर हम एक माला करते हैं, रोज एक माला को बढ़ाते हैं, तो जैसे मैंने 2 भक्तों का उदाहरण दिया था। एक तो अचिंत्य रूप दास का, जिन्होंने हर बर्थडे के ऊपर एक जपमाला एक माला जो है उन्होंने अपने डेली के चैंटिंग्स के अंदर, राउंड्स के अंदर उन्होंने एक ऐड कर दिया था, और वो कैसे आगे बढ़े। तो आज वो 34-35 राउंड्स एवरी डे करते हैं, एकादशी के दिन तो ज़्यादा करते हैं। तो आज से अगर हम ये प्रण लें या ये करें कि हम अब ये 3 चीज़ों का, सिंप्लिसिटी, उसके बाद में जो है सिंप्लिसिटी को हम अपने जीवन में उतारें, उसके बाद में स्मॉल बेबी स्टेप्स लें कि हमने कल से आज कितना अच्छा किया, और तीसरा जो स्थिति है उसको हम एम्ब्रेस करें। एम्ब्रेस का मतलब ये नहीं कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, मगर वही हम इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमको आत्मनिरीक्षण करना है कि हम किस तरह कल से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँगा। किसी को कोई प्रश्न ऐड करना हो या किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो, प्लीज। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। बहुत अच्छा, एज यूजुअल बहुत अच्छा क्लास था आपका। बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने शेयर किया, वो वैष्णव का क्या गुण होना चाहिए। तो दिस इज वेरी नाइस। मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को अगर कोई प्रश्न है आज के श्लोका से संबंधित या एकादशी से संबंधित, तो उसको ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच बुद्धो प्रेस प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। और जैसे कि आपने वो जो 26 क्वालिटी आपने जो बताया वैष्णव के प्रभु, सो दैट वाज अमेजिंग। हम लोग ने लास्ट टाइम भी इसका चर्चा किया था साधु संघ ग्रुप में, एंड आपने फिर से वो पूरा 26 क्वालिटी को फिर से याद दिलाया प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब ये हम जब हमेशा हम ये सब याद करते हैं तो एटलीस्ट जब कभी ऐसे गुस्सा आता है या कभी अगर समझो कि हमको मतलब कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है तो डेफिनेटली ये सब याद आता है। तो एटलीस्ट उस समय के लिए तो थोड़ा टाइम के लिए तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उस समय के लिए मैं थोड़ा सोचता हूँ कि यस, ये वैष्णव क्वालिटी होना चाहिए, हम गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच उद्धव प्रेस प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू प्रीवियस आचार्यस। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी। बहुत आपने जो पॉइंट्स बताए उसमें से सिंप्लिसिटी, स्मॉल एडवांसमेंट एंड एम्ब्रेसमेंट, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आपने बताया कि सिंप्लिसिटी कैसा होना चाहिए, तो हमारे जो क्लास में मनोहर प्रभु करके है, जो हम क्लास भक्ति शास्त्रीय क्लास लेते हैं, तो बोलते हैं कि सिंप्लिसिटी मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम मतलब हम लोग को जो विचार है वो बहुत मतलब कैसा हम लोग प्रचार कर सकते हैं भगवान का। तो वो बता रहे थे कि सिंप्लिसिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप किधर भी पड़े रहो, ये मतलब ऐसा नहीं। सिंप्लिसिटी इन व्हाट सेंस, लाइक आप सिंपल रहो, बट लेकिन अगर आपको कोई देखेगा तो ही शुड कम टू नो यस ही इज जो हरे कृष्णा डिवोटी है। तो अपने विचार भी वैसे होने चाहिए, अपने कार्य भी वैसा होना चाहिए कि हम लोग अच्छे से प्रचार भी कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। और प्रभु जी अपनी जैसे पता है 26 क्वालिटीज, उसमें आपने, तो अगर हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो मुक्ति और मुक्ति को भी कुछ ये नहीं करते, मतलब दे आर नॉट बॉदर अबाउट मुक्ति ऑल्सो, क्योंकि दे नोज दैट ये जो भक्तिमय सेवा है दैट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये 26 की 26 क्वालिटीज अगर हम अपने आप में उतारने का प्रयास करें, वी हैव टू डू, जैसे ये प्रयास हम करेंगे, कृपा ठाकुर जी करेंगे, विच रिमाइंड्स ऑफ द दामोदर सकम। तो उस जैसे हम जो प्रयास करेंगे, कृपा ठाकुर जी करेंगे, तो 26 की 26 क्वालिटीज हमको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक तपस्या है।
तो इस तपस्या का आई वाज जस्ट लिसनिंग टू फ्यू ऑफ द लेक्चर्स, तो तपस्या के बारे में बताया कि व्हाट इज एक्चुअली तपस्या, तपस्या का रियल डेफिनेशन क्या है। तो कहते हैं कि वॉलंटरली एक्सेप्टिंग द इनकन्वीनियंस, मतलब जानते हुए भी कि ये मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करना, फिर भी उसको अपने जीवन में उतारना, तो दैट इज रियल तपस्या। तो हमको ये तपस्या, मतलब हमको प्रण लेना चाहिए एकादशी के दिन के, इतनी बड़ी एकादशी है, ये प्रण लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हमको कि हम जो अपने जीवन के अंदर ये तपस्या करें कि ये जो 26 की 26 क्वालिटीज हैं जो हमारे आचार्य गण ने बताई है हमको, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अगर 26 नहीं होती तो एटलीस्ट जो जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। दिस इज व्हाट इज रियल तपस्या। तपस्या बैठ के जो है हम और ये 26 की 26 क्वालिटीज बहुत ही सिंपल वे से जीवन में आ सकती है। आई वाज हियरिंग दिस लेक्चर, तो उसमें बताते हैं कि भाई ये 26 की 26 क्वालिटीज आपके जीवन में एकदम आसानी से आ सकती है। मतलब इट इज सो सिंपल, एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सिंपल तो है, एकदम बहुत ही सरल है। बस सरल कैसे बोला, आप अगर ध्यान पूर्वक आपका जप करें तो ये 26 की 26 क्वालिटीज आपके अंदर आ सकती है। All the 26 qualities can come into you just by chanting seriously. This all 26 qualities you can imbibe. तो मतलब तपस्या का जब भी मैंने इसका डेफिनेशन सुना था, was really, मतलब मुझे लग गया दिल के एक और बात की भाई वॉलंटरली हम कोई एक्सेप्टेंस ऑफ द इनकन्वीनियंस, हमको पता है ये बहुत डिफिकल्ट है। हम जब ये इनकन्वीनियंस हमको लगता है, मगर जब हम इसको करेंगे, when you take seriously to the chanting of the Lord's holy name and really you are serious about it, definitely you can get all the 26 qualities, of course on the mercy of the Lord. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और एक जस्ट पूछना था, एक भक्त थे तो उन्होंने बताया कि अगर आप किसी धाम में जाते हो, जैसे अपनी क्वालिटीज में बताया कि नो मटेरियल अटैचमेंट, तो एक डिवोटी बात कर रहे थे मेरे से, तो बोल रहे थे आप जब भी किधर धाम जाएंगे या अभी 4 धाम अगर आप किधर जा रहे हो किधर, तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि अपने जस्ट जाने का मतलब खाली विजिट नहीं करने का, तो इसमें आपको विरक्ति कितना आ रहा है। मतलब अभी इसमें 26 क्वालिटीज में है कि नो मटेरियल अटैचमेंट, वो आपने पॉइंट बताया प्रभु जी। तो प्रभु जी ये कैसा डेवलप कर सकते हैं प्रभु जी, कि ये बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी, कि लाइक मटेरियल अटैचमेंट रहता ही है, तो प्रभु जी कैसा मतलब हम लोग इसको ये कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपने प्रश्न पूछा और सीधा जब मुझे श्रीला प्रभुपाद के लीलामृत से ज्ञान हुआ कि मेरे आई एम क्वाइट श्योर इट इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है जिन्होंने बचपन में आम खा लिया था विदाउट बीइंग ऑफर्ड टू द लॉर्ड, एंड सिंस देन ही डिड नॉट ईट आम, मतलब उन्होंने मैंगोस को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो उसी तरह जो चीज हमारी प्रिय वस्तु है वो अगर हम धाम में जाते हैं तो लाइक माय पेरेंट्स दे यूज्ड टू से कि जब भी मतलब वो हरिद्वार जाते हैं तो वो ये कहते कि भाई इधर हरिद्वार में आके मैंने अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ दिया। यानी अगर सपोज कोई आते थे तो वहां पर उन्होंने कभी चावल छोड़ दिया तो फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ दे नॉट ईट राइस। कहीं पर गए, मतलब धाम में गए तो वहां पर धाम में जाकर उन्होंने कहा कि ये चीज जो मुझे बहुत प्रिय है इसको छोड़ देना है। तो इस तरह जो है हमारी अटैचमेंट वहां पर, ये हमारा एक प्रण होना चाहिए। दिस इज इंडिविजुअल चॉइस, वहां पर जाके उस चीज को हम छोड़ दें वहां पर जाके, या नॉट ओनली जो आपकी प्रिय वस्तु है, आपके अंदर जो अवगुण है, अवगुण को वहां पर छोड़ दें और वहां से गुण लेकर आए, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। तो दिस विल बी एन इंट्रोस्पेक्शन, हम अपने आप को अपने अंदर देखेंगे, अपने हमारी आत्मा का निरीक्षण करेंगे कि हमारे अंदर अवगुण कितने हैं, कि what all bad things we have। हमको गुस्सा जल्दी आता है,
हमको प्रजल्प करने की आदत है, हमको जो है दो आदमी बात कर रहे हैं उसके बीच में बात करने की आदत है। जो किसी को, जैसे अभी हमने 3 यहाँ पर जो गुण देखे थे, तो उसके अंदर जो लास्ट वाला हम लोग ने ट्रूथफुलनेस का हमने क्या देखा कि हम वितंड हैं। वितंड यानी हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी डिस्कशन के अंदर से मैं इस बात को जीत लूं, इन सब के ऊपर मैं हावी हो जाऊं। तो ऐसे टाइप की जो प्रक्रिया है उसको छोड़ना। तो ऐसे दिस इज हाउ यू विल लीव द जो आपके मटेरियल अटैचमेंट्स हैं इन चीजों से। क्योंकि आपको चाहिए को आपको ये क्यों चाहिए कि आप किसी भी डिस्कशन में बैठे हो तो आपको जीतना है? क्यों? बिकॉज यू आर इगोइस्टिक पर्सन। आपको ईगो है कि नहीं, मैं कहीं पे हारना नहीं चाहता और मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। तो आपको इस चीज को वहां पर त्यागना है। तो ऐसे जो गुण हैं, ये मतलब लाइक व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स, व्हाट आई हैव हर्ड कि ऐसे मतलब तरीके से जो है हम उन चीजों को त्याग कर सकते हैं। और इस वजह से हमको हमारी आसक्ति इट्स नॉट दैट इजी टू लीव ऑल दिस। जो हमारे अंदर अनर्थास है, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। मगर इसका एक ही जो है, वी हैव टू सरेंडर टू द लॉर्ड, आस्किंग हिम, प्लीज हेल्प मी टू, आई एम टेकिंग दिस वाउ, मैं ये जो है प्रण ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आके गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्से को त्याग रहा हूँ, मगर आप मेरी इसमें सहायता करें। तो भगवान से जब हम कृपा करेंगे तो इन चीजों से जो अनर्थास हैं हमारे जीवन के अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और हमसे छूट जाएंगे। तो सही माने में देखा जाए तो ये मटेरियल अटैचमेंट ये है, मटेरियल अटैचमेंट का। और मतलब जब हम प्रयास करेंगे तो दिस ऑल थिंग्स दे डू हैपन। एंड डिवोटीज एज यंग एज अभी जो 22 साल के 23 साल के डिवोटीज हैं यहाँ पर दामोदर देश के अंदर, दे हैव टेकन द वॉ दैट वी विल नॉट ईट एनीथिंग आउटसाइड। बाहर का खाना खाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे भी है, जैसे रामराज प्रभु हैं, वो तो बाहर की दही तक नहीं खाते हैं। यहाँ पर जो अलरवापी की और जो इतनी सारी अलैन की इतनी सारी दही मिलती है, वो नहीं खाते। वो घर के अंदर दही जमी होगी तो खाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं खाएंगे। तो दिस इज व्हाट रियली द थिंग इज दैट कि वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो है एक तरह से फैनेटिक हो गए, नहीं। दिस इज दे आर ट्राइंग मीकली, सबमिसिवली, विनम्र होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप शक्ति दो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊं, मैं सिर्फ भोग जो आपको ऑफर किया हुआ है वो खाऊं। तो ये सब, दीज आर द क्वालिटीज, दिस इज हाउ यू कैन गेट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। दिस इज व्हाट आई कैन से। Prabhu, Gopi Manu Prabhu can add in this points if he has some. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, बहुत आपने अच्छा किया। मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर था, जरा अभी आया हूँ, तो आई एम नॉट विद द डिस्कशन। सॉरी। No problem. या कोई और भक्त है जो ऐड करना चाहता है? Sarvadev Prabhu can add if he has some points. या अपना सूरत माधव मिसिंग है कल 2 दिन से। हाँ, वो I think traveling है, isn't he? आई थिंक हाँ, निकल गया होगा शायद, बट उसने ज्वाइन भी नहीं किया। उसने एटलीस्ट तो ज्वाइन तो करता है। अच्छा, शायद नाराज है। नहीं, कुछ होगा, सेवा होगा उसका। सही। सर्वदेव गिरधारी प्रभु, if you have any points, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नो प्रभु, आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु कि हम मतलब आपने ये जो एक पहला पॉइंट बोला कि हमें मतलब कुछ ना कुछ प्रण लेना बहुत जरूरी है प्रभु। देन ओनली वी कैन, अगर हम, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है प्रभु मटेरियल अटैचमेंट, अगर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे उसको छोड़ने का प्रभु, इट विल नेवर हैपन। बट वो भी है कि साथ ही साथ हमें भगवान की कृपा होनी भी बहुत जरूरी है। बट जो आपने कहा ना प्रभु कि प्रण लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि जैसे दामोदर देश में कई सारे जो अपने जो यंग डिवोटीज है, दे टेकन दी प्रण कि हमें बाहर का नहीं खाना है। बट इट इज नॉट इनफिनिटिक, जैसा आपने बताया कि ये कोई मतलब मनगणित वो नहीं कर रहे, बट दे आर डेफिनेटली आस्किंग मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड कि हमें भगवान की कृपा हो। और वही साथ में साथ हमें मतलब दोनों भी, जैसे कि हम दामोदर लीला में भी हम लोग सुनते हैं कि प्रयास और भगवान की मर्सी, ये दोनों होना बहुत जरूरी है।
सो वही जैसे कि अभी आज का जो तिथि है, मतलब आज एकादशी है, जैसे ऐसे बहुत अच्छे जब तिथि आती है, बहुत बड़े बड़े तिथि आती है, तो वी शुड भी मतलब उस समय हमें कुछ ना कुछ एक प्रण लेना बहुत जरूरी है प्रभु। जैसे आपने बताया, इट वाज वेरी नाइस पॉइंट प्रभु, कि एटलीस्ट छोटे से छोटा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हम प्रण ले और हमसे वो हो नहीं पाए, बट वो आपने जैसे कहा ना प्रभु कि वो बेबी स्टेप, मतलब छोटा छोटा स्टेप, जिससे हम प्रगति कर पाएंगे आगे जाकर। सो जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको उसको मतलब अपने इसमें रख के हमको वो करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन प्रोग्रेस इन आवर डिवोशनल सर्विस प्रभु। बहुत जल्दी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे प्रभु। सो दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट आपने जो बताया प्रभु। थैंक यू द फ्रेश प्रभु जी। Hare Krishna. Satyaraj Prabhu, I think that I have given justice to your question. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। और प्रभु जी, एक चीज मुझे याद आ रहा था, मेरे डिवोटी फ्रेंड है, वो जब भी कुछ भी यात्रा जाते हैं, वो बोलते कि मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ, और मतलब 3 दिन का यात्रा है, 4 दिन का, वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देते हैं बैग के अंदर, और घर में सबको बोलते हैं कि मैं खाली एक ही बार कॉल करूंगा, जो कि वो भी उसमें 2-3 मिनट ही खाली बात करेंगे रात को, कि ऐसा ऐसा है, पूरा दिन का मैं इधर ट्रैवल किया, महाराज ने ये डिस्कशन में ये बताया, फिर बस ओनली 3 मिनट्स, और 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करते, फिर वो फ्लाइट मोड पे डाल के रख देते हैं फोन। तो वो चीज मुझे याद आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। See, this is another very nice experience, and this you can get from devotees. Devotees के संग में रहेंगे तो आपको नई नई जो है ना आइडियाज मिलेंगी, how to get rid of the anarthas which are within us. क्या हम नहीं करते हैं? हम जो है कंटिन्यूअस हम 3 मिनट पूरे दिन में रह नहीं सकते मोबाइल के बिना, और वो जो है पूरे दिन रह सकता है, सिर्फ 3 मिनट वो बात करता है, वो भी अपने पेरेंट्स को, अपने जो रिलेटिव्स है, जो भी है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई एवरीथिंग इज ओके, डोंट टेक टेंशन, और उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शंस दे के रखा है। तो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट, दिस इज यू शुड लर्न, मतलब हम लोग को, यू शुड नहीं, वी शुड लर्न फ्रॉम द डिवोटीज कि हमको कैसे, जो किसी चीज के हम इतने आदी हो चुके हैं, जो अनर्थ है, दीज आर ऑल बेसिकली डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे जो है रोड़े हैं, हम आगे प्रगति नहीं कर पा रहे। हर 10 मिनट के बाद में हम मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप पे किसने मैसेज भेजा, फिर वो मैसेज में आया तो एंग्जाइटी आ गई। तो जैसे अभी आज का विषय भी यही था कि जो चीज नुकसान वाली है उसके बारे में उसको पता चलना है, तो कैलामिटी आनी है तो पता चलना ही है, तो उसके बारे में चर्चा एडवांस में करके आप एक दिन पहले से हम जो है डिस्ट्रेस में क्यों चले जाएं, एंग्जाइटी में क्यों चले जाएं? तो डोंट डिस्कस अबाउट दिस, और सी इट्स अ लॉर्ड, विल ऑफ द लॉर्ड, वो सोच के मतलब देखना ही नहीं है उन चीजों को। हम जैसे न्यूज के लिए बैठते हैं, यू गेट सो एजिटेटेड, वो बैठ के मतलब इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इधर ये पथराव किया, वो एक ही सीन 10 बार दिखाते हैं पूरे दिन के अंदर, और हम जो एजिटेट हो जाते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग गलत हैं, हम लोग सही हैं। कोई सही कोई गलत नहीं है, जो हो रहा है, तो मैंने ठाकुर जी ने जैसे किया है वैसे किया है, वो उसकी लॉर्ड की विल है, तो इसको हमको एक्सेप्ट करना है। तो वो हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं है, हम लोग सिर्फ जो है, हम लोग सिंपल हैं। उसके बाद में अगर हम जो बेबी स्टेप्स भी लेते हैं, मगर वो बेबी स्टेप्स लेने के बाद में हमको एम्ब्रेस भी करना है। एम्ब्रेस करना मतलब व्हाटएवर इज देयर, इट्स द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी हो रहा है संसार के अंदर, उसकी इच्छा के हिसाब से हो रहा है। तो व्हाई शुड बी मतलब उधर हम अपना ये दिखाएंगे मेरे दायित्व के वजह से ये हुआ, या मेरे जो लॉर्डिंग नेचर के मैंने ये किया, वो आती जो है ईगो तभी आता है जब हम इन चीजों के साथ में जुड़ते हैं। जब पहले से हमारा संकल्प यही हो जाएगा कि जो भी हो रहा है भगवान के निर्देशन के अंदर हो रहा है, और भगवान की कृपा से हो रहा है, और उनकी मर्जी से हो रहा है, तो बात ही खत्म हो जाती है। सो देन देयर इज नो अदर थिंग, ओनली थिंग व्हाट इज विथ मी, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि मुझे जो है भगवान की सेवा करनी है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में गुणगान करना है, भगवान के बारे में प्रचार करना है, ये मैं कर सकता हूँ। बाकी उसका बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है, जो भी है वो भगवान खुद देखेंगे। तो ये जब हमारा अप्रोच रहता है तो दिस विल हेल्प अस। हरे कृष्णा।